Hello, dear students. Welcome back to our channel Study Shark. Up to you all are fine and doing well in your studies as well, बच्चे बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी का हमारे चैनल स्टडी शार्क में। अब बेटा आज जो हमारा नया चैप्टर है वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बिना किसी देरी के बेटा स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि हमें चैप्टर अंडर 40 मिनट्स पूरा कंप्लीट करवाना है वन शॉट। ठीक है, क्योंकि वन शॉट चल रहा है आजकल। क्यों ला रही हूँ मैं इतने सारे वन शॉट आप सबके लिए? क्योंकि बेटा आप सबके बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी नियर नाउ एंड इट्स टाइम टू डू अ इमेंस हार्ड वर्क। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओवरव्यू में आते हैं बेटा। लेट अस बिगिन टू wind up our tour of democracy. It's time to move beyond the discussion of specific themes and ask a general set of questions. What does democracy do, or what outcomes can we reasonably expect from democracy? Also, does democracy fulfill these expectations in real life? We begin by thinking about how to assess the outcomes of democracy. After some clarity on how to think on this subject, we proceed to look at the expected and actual outcomes of democracy in various respects: quality of government, economic well-being, inequality, social differences, conflicts, and finally freedom and dignity. ओके, तो बेटा इन सभी के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखो, हाउ टू एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। कैसे हम लोग बेटा डेमोक्रेसी के आउटकम्स को एसेस कर सकते हैं बेटा? ठीक है, डू यू रिमेम्बर हाउ स्टूडेंट्स इन मैडम लिंडॉक्स क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी? दिस वाज इन द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 टेक्स्ट बुक। बेटा चैप्टर 2 जो था क्लास 9 की टेक्स्ट बुक था उसमें था। चैप्टर 2 क्या था? व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। उसमें बेटा मैडम लिंडॉक की क्लास में जो बच्चे थे उन्होंने बहुत सारी चीजों में आर्ग्यूमेंट किए थे। It emerged from the conversion of democracy is a better form of government when compared with the dictatorship or other alternative. It was felt that democracy was better because it promotes equality among the citizen बेटा, enhance dignity of the individual यानी कि self respect in the citizen की बढ़ाती है, improves the quality of decision making यानी कि decision making की quality improve होती है, provides a method to resolve the conflicts, एक method provide करती है conflicts को resolve करवाने का, allows room to correct the mistakes, एक रूम प्रोवाइड करवाती है कि भाई हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकें। आर दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज्ड इन द डेमोक्रेसीज व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल अराउंड अस? मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी। ज्यादातर लोग बेटा मैंने आपको बताया वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, when we talk about people around us, most of them support democracy against any alternative, such as rule by monarch or military or religious leaders. But not so many of them would be satisfied with democracy in the practice. लेकिन बहुत सारे लोग satisfied नहीं भी होंगे डेमोक्रेसी से अगर मैं प्रैक्टिस की बात करती हूँ। So we face dilemma. Dilemma यानी कि बेटा हमें confusion आता है कि democracy seem to be good in the uh, principle, but it felt to be not so good in its practice. This dilemma invites us to think hard about the outcomes of democracy. Do we prefer democracy only for moral reason, or are there some prudential reasons to support democracy too? या फिर कुछ prudential reasons भी हैं जिसकी वजह से हम democracy को support करते हैं? Over 100 countries of the world today claim the practice some kind of democratic politics. They have formal constitutions, they hold elections, they have parties, and they guarantee rights of citizens. While these features are common to most of them, these democracies are much different from each other. ठीक है, लेकिन ये democracies बेटा एक दूसरे से बहुत different है in terms of social situations, their economic achievements, and their cultures. Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very different. ये बहुत ज़्यादा different होगा, but is there something that we can expect from every democracy just because it is democracy? क्या कुछ ऐसी चीज है जो हम हर डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ इस रीजन की वजह से क्योंकि वो डेमोक्रेसी है? तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। Our interest and fascination for democracy often pushes us to the taking a position that democracy can address all social, economic, and political problems. If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy. अगर आप देखोगे भाई कुछ भी चीज हमारी पूरी नहीं होती तो हम लोग डेमोक्रेसी को ब्लेम करने लग जाते हैं कि भाई ये तो बेकार है। ठीक है, or we start doubting if we are living in a democracy. The first step, thinking carefully about the outcomes of democracy, is to recognize that democracy is just a form of government. It can only create conditions for achieving something. देखिए वो सिर्फ एक गवर्नमेंट की फॉर्म है, वो सिर्फ ऐसे कंडीशन बना सकती है कि हम कुछ चीज अचीव कर सकें। जैसे सिटीजन्स को इक्वल राइट दे रही है, उनको ये हक दे रही है कि भाई वो अपनी मांगे रख सकते हैं, तो इससे कहेंगे वो मांगे पूरी ही हो जाएंगी ऐसा थोड़ी ना हम कह सकते हैं। हमने अपनी मांगे रखी बट पूरी करना ना करना वो लीडर्स के हाथ में, वो लोग डिसीजन लेंगे, वो लोग लॉ बनाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन रीजनबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट।
अकाउंटेबल मतलब कि जो लोगों को बहुत ज्यादा मतलब लोगों की बातों में ध्यान देती है, रिस्पॉन्सिव यानी कि रिस्पॉन्स देती है, लेजिटिमेट यानी कि लीगल गवर्नमेंट है, लीगलिटी प्रूवन है। देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड इन दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड इन अ डेमोक्रेसी. In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have right to choose their rulers and people will have control over the rulers. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making. Citizens को decision making में participate करवाना चाहिए. That affects them all. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens, responsive to the needs and expectation of the citizens. यानी कि accountable है citizens का, responsive उनकी needs के लिए, यानी कि उनको जो चाहिए वो provide करवा रही है, expectation of the citizens. Before we go into the question, we fact another common question is the democratic government efficient? या फिर democracy government जो है efficient है? Is it effective? Some people think that democracy produces less effective government. It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberations in assemblies or worry about majority and public opinion. So they can be quick and efficient in decision making. ठीक है, आपको पता है कि भैया नॉन डेमोक्रेटिक जो लोग हैं, डिक्टेटरशिप है या कोई मिलिट्री रूल वगैरह है, इनमें इनको डिस्कशंस की जरूरत नहीं पड़ती, तो फटाफट डिसीजंस ले लेते हैं. बट डेमोक्रेसीज में वी नीड टू डिस्कस द थिंग्स. ओके, सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड निगोशिएशन, यानी कि निगोशिएशन और डेलिब्रेशन के आइडिया में ये चलती है. सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, तो कुछ ना कुछ डिले तो होगा ही. डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट? क्या ये चीज कि भाई हम उनको डिले लग रहा है डिसीजन बनाने में, क्या ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट बताता है? बिल्कुल भी नहीं. लेट अस थिंक इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट. इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मे टेक डिसीजंस वेरी फास्ट बट मे टेक डिसीजंस दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल. लेकिन बेटा वो ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो कि लोगों द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है. इन कॉन्ट्रास्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट will take more time to follow the procedures before arriving at the decision, but because it has followed the procedures, the decisions may be both more acceptable to people and more effective. ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी प्लेस इज पेरहैप्स वर्थ इट. यानी कि भाई जो डेमोक्रेसी टाइम ले रही है डिसीजन बनाने में वो वर्थ इट है, क्योंकि वो जो डिसीजन ले रही है वो बिल्कुल अच्छे, सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है. Now look at the other side of democracy that ensures that decision making will be based on norms and procedures. So a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedures can find this out. If she has a right to examine, she has a right and the means to examine the process of decision making. This process of decision making, this is known as transparency. This factor is often missing from the non-democratic government. अब आप देखो, ये अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो अगर जो डिसीजन मेकिंग हुई है आप लोग सब चीज एग्जामिन कर सकते हो कि भाई कैसे हुई है, ये डिसीजन क्यों लिया था, ये क्या है, करेक्ट प्रोसीजर लिया है कि नहीं लिया है, आपको हर चीज पता होगी क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहते हो. लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको ये फैक्टर नहीं मिलता है कि भाई आप हर चीज देख पा रहे हो क्यों हुआ कैसे हुआ. तो ट्रांसपेरेंसी आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही मिलेगी. ठीक है, शी हैज राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. देखो, therefore when we try to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedures and is accountable to the people. We can also expect that the democratic government develops a mechanism for people to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making whenever they think fit. ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई सब बच्चों को. अब नेक्स्ट टर्म, इफ यू वांटेड टू मेजर द डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम्स. ठीक है, लेकिन अगर आपको ये मतलब मेजर करना है डेमोक्रेसी को ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम्स, you would look for the following practices and the institution: regular, free and fair elections, open public debate on major policies and legislation, and citizens' right to information about government and its functioning. The actual performance of democracy, actual performance of democracies show a mixed record on this. ठीक है, ये मिक्स रिकॉर्ड शो करता है इस पर्टिकुलर फैक्टर में. ठीक है, अब देखो कैसे है.
Democracy have a greater success in setting the regular and free elections and setting up the conditions for open public debate. ठीक है भाई, हमारे फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, but most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and subjecting every decision to the public debate. बहुत सारी डेमोक्रेसीज बेटा इस चीज में फेल हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं टू प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरीवन. ठीक है, democratic government do not have a good record when it comes to sharing information with citizens. All one can say is favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regime in these respects. तो अब भाई और नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से तो अच्छे ही है, पर कुछ कुछ चीजें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी हमसे छुपाए रखती हैं. In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of people and is largely free of corruption. करप्शन तो आजकल बेटा कोई चीज फ्री नहीं है. वैसे अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ, कोई हर चीज में करप्शन है, हर चीज में. आप कोई भी डिपार्टमेंट में देख लो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में देखो, पुलिस वाले डिपार्टमेंट में देखो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देखो, हर जगह करप्शन तो है ही. करप्शन से लोग अपना काम करवा रहे हैं ना, डिफरेंट से करवा रहे हैं. तो करप्शन से तो फ्री नहीं है, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे डालूं, क्योंकि बेटा आजकल रियल लाइफ में तो फ्री नहीं है. पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो लोगों की नीड्स और डिमांड्स के लिए अटेंटिव हो, यानी कि नीड्स और डिमांड पूरी करे, उनकी नीड्स और डिमांड्स पर ध्यान दें, लार्जली फ्री ऑफ करप्शन हो, यानी कि करप्शन ना हो. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर हम रह रहे हैं तो हम लोग ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि हम करप्शन से दूर रहें, यानी कि ये ना हो कि भाई रिश्वत दे के लोग अपना जो है काम करवाए जा रहे हैं, है ना, और जो लोग सच में काम जिनको अपना करना था उन लोगों को काम सर्विस नहीं मिल रही है ना. तो ये ना हो, ये चीज तो हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से. द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू अकाउंट्स. ठीक है, डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल एंड व्हाट इज रिटन, सी बच्चे, often ignore the demands of majority of its population. The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil. तो इस evil से तो democracy free नहीं है. At the same time, there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to the people. ऐसा भी नहीं है कि भाई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपकी बहुत अच्छी है, डिक्टेटरशिप में भैया बिल्कुल करप्शन हो ही नहीं रहा है, या फिर वो जो है ज्यादा सेंसिटिव है पीपल के टुवर्ड्स. There is one respect in which democratic government is certainly better than the alternative. एक रिस्पेक्ट तो ऐसी है जिसमें आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सच में ज्यादा अच्छी है उसके ऑल्टरनेटिव से, यानी कि डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल या फिर मोनार्की, इन सब चीजों से. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट यानी कि लीगल गवर्नमेंट है. इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, बट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव एंड क्लीन. But a democratic government is people's own government, and that is why there is overwhelming support for the idea of democracy all over the world. इसलिए आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट होता है फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सारे वर्ल्ड में. एज accompanying evidence from the South Asia shows, the support exists in the country with democratic regimes as well as countries without democratic regimes. ठीक है. नेक्स्ट सी, पीपल विश टू रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय देम. तो पीपल यानी कि लोगों के अच्छे होते हैं कि हम उन्हीं के द्वारा, वही लोग हमें रूल करें जिनको हमने चुना, यानी कि वी हैव इलेक्टेड देम. ओके, नेक्स्ट इज, दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सूटेबल फॉर देयर कंट्री. और वो इस चीज में भी बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी इज सूटेबल फॉर देयर कंट्री. डेमोक्रेसी इज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज itself an outcome that cannot be ignored. डेमोक्रेसी की जो एबिलिटी है कि वो अपना सपोर्ट खुद डेवलप करवा सकती है, ये खुद भी एक आउटकम है जो कि हम लोग इग्नोर नहीं मान सकते हैं. ठीक है बेटा, ये अगर आप सेंसस देखो, रिपोर्ट्स देखो, डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एक्सेप्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान. तो पाकिस्तान की तो बेटा हम बात ही क्या करें, अब उसकी बात करने से तो हमारा कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तानों की हरकत क्या होती है कि भाई पहलगाम अटैक करना है इनको और यही सब अटैक वगैरह करना है, तो इनकी बात हम लोग नहीं करते हैं. तो इनके डेमोक्रेसी तो इनके वहां प्रेफर नहीं की जाती है, बाकी सारी कंट्रीज में जो है प्रेफर की जाए. डेमोक्रेसी इज प्रिफरेबल, यानी कि बांग्लादेश में 69, इंडिया में 70, पाकिस्तान में 37, और नेपाल में 62, श्रीलंका में 71. समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज बेटर, समटाइम डिक्टेटरशिप इज बेटर. ये जो कौन सी कंट्री सपोर्ट कर रही है, बांग्लादेश में 6 लोगों ने सेंसस बेटा आपको दिखा रखा है. ठीक है, दो एग्रीज, और इंडिया में 9, नेपाल में 10 और पाकिस्तान में 14. ठीक है, पाकिस्तान में नंबर बढ़ रहा है, श्रीलंका में 11. उसके डजेंट मैटर टू मी देखो, पाकिस्तान का सबसे ऊपर है, और इंडिया में बेटा 21, और श्रीलंका में 18. ठीक है, अब देखो, वेरी फ्यू डाउट द सूटेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी फॉर देयर ओन कंट्री. तो जैसे वेरी सूटेबल में अगर आप देखोगे, इंडिया में बेटा
अगर आप देखो तो ज्यादातर लोगों ने जो है सूटेबल ही बोला है, और वेरी सूटेबल जो है कम लोगों ने बोला है, लेकिन सूटेबल सबने बोला है लगभग। उसके बाद फिर स्ट्रांगली एग्री, और एग्री में भी अगर आप देखो तो इंडिया में यही है, लेकिन पाकिस्तान में आप देखो तो पाकिस्तान में आप देखोगे तो वेरी सूटेबल और सूटेबल दोनों का ही ये एकदम इक्वल टाइप का दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो बेटा ये समझ में आ गया आपको? हम्म, समझ में आ गया बेटा? ज्यादातर लोगों ने जो बोल रखा है तो वो यही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा आपका ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे दोज हु एग्री विद द रूल ऑफ लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, स्ट्रांगली एग्री और एग्री। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको बेटा रिपोर्ट्स दे रखे, जिससे हमें पता चलता है कि ज्यादातर लोग डेमोक्रेसी से खुश हैं। अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आ जाते हैं। डेमोक्रेसी आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स, देन इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। एविडेंस देखो बेटा, अगर डेमोक्रेसी जो है गुड गवर्नमेंट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी विल प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स, देन इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट that democracy would also produce development. Evidence shows that in practice many democracies did not fulfill this expectation. यानी कि डेमोक्रेसी जो है ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करती है कि भाई डेवलपमेंट भी उतनी तेजी से करवा रहे हैं, है ना? इफ यू कंसिडर ऑल द डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 years, that is 1950 to 2000, dictatorships have slightly higher rate of economic growth. क्यों बेटा? क्योंकि डिक्टेटरशिप में डिसीजन वही लेना होता है, उसको डिसीजन मेकिंग में टाइम नहीं लगता है, तो फटाफट डिसीजन लिए जाता है और डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में हर बार जो है उनको इतना ज्यादा डिस्कशन करना है, फिर डिसीजन लेना है, तो इसलिए लेट तो हो ही जाता है। ठीक है, अब देखो द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस, बट दिस इज नॉट अलोन कैन नॉट बी द रीजन टू रिजेक्ट द डेमोक्रेसी, एज you have already studied in the economics. Economic development depends on the several factors of the country's population. तो कंट्रीज पॉपुलेशन में डिपेंड करता है बेटा, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें भी डिपेंड करता है, ग्लोबल सिचुएशन हो गई, कोऑपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज adopted by the country, etc. However, the difference in the rates of economic development between the less developed countries with dictatorship and democracy is negligible. ठीक है, तो अब देखो जो बेटा रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट between less developed countries with dictatorship and democracy is negligible. Overall, we cannot say that democracy is a guarantee of economic development, but we can expect democracies not to lag behind the dictatorship in this respect. लेकिन हम बेटा ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से कि भाई डिक्टेटरशिप से लैग बिहाइंड मत करो इस रिस्पेक्ट में, कि भाई तुम लोग डेवलपमेंट नहीं करवा रहे हो, लेकिन अच्छी गवर्नमेंट हो लेकिन डेवलपमेंट नहीं करा पा रहे हो। When we find such insignificant difference in the rates of economic growth between the countries under the dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes. भाई ऐसा थोड़ा ना हम एक ही रिस्पेक्ट थोड़ी हम देंगे भाई कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिक्टेटरशिप में ज्यादा जल्दी हो रहा है, हम लोग को और चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि डेमोक्रेसी के बाद ज्यादा अच्छे पॉजिटिव आउटकम्स है, इसलिए हमें डेमोक्रेसी को ही प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो कार्टून है ऑन दिस पेज, and the next three page tells us about the disparities between the rich and poor, show the gains of economic growth be evenly distributed. How can we the poor get a voice of better share in the nation? What can the poor countries do to receive a greater share in the world's wealth? तो बेटा आप देख सकते हो the rich get buff, तो रिच के पास देखो कितना ज्यादा, भाई रिच लोग रिच ही बनते जा रहे हैं और पुअर लोग जो है पुअर ही बनते जा रहे हैं, है ना, और पुअर खसीदते जा रहे हैं उनको। तो ये है इकोनॉमिक एंड द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स इन 2000 टू 2006। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो इनकम्स इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में आते हैं हम लोग। आर्ग्यूमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी टेंड टू बी वेरी पैशनेट। ठीक है, तो देखो दिस इज हाउ इट शुड बी, फॉर डेमोक्रेसी अपील्स टू बी some of our deep value. These debates cannot be resolved in a simple manner, but some debates about democracy can and should be resolved referring to some facts and figures. The debate about the economic outcomes of democracy is one such debate. Over the years, many students of democracy have gathered careful evidences to see what the what the relationship of democracy with economic growth and economic inequality is. The table in the cartoon here represents some of the evidences beta. So table 1 shows that on an average dictatorial regimes have slightly better record of economic growth, but when we compare to their record only poor countries, there is virtually no difference. Then table 2 shows that within democracies there can be very high degree of inequalities. In democratic countries like South Africa, Brazil, the top 20% people take away more than 60% of the national income, living less than 3% of the bottom
Okay, for the bottom 20% population, countries like Denmark and Hungary are much better in this respect. So, beta, you can see this. You can see in the cartoon there is often inequality opportunity available for the poorer section. तो बेटा यही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं एक सेक्शन ही बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहा है दूसरा बिल्कुल ही पुअर में गिरते जा रहे हैं है ना तो ये चीज है बेटा टेबल आप देख लो एक बार रिकॉर्ड reduction of inequality and poverty. Perhaps the more than the development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparity is very important. Even when the country achieves economic growth will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country have a share that lead to a better life. This is economic growth in the democracy accompanied by the increased inequalities among the people or do democracies lead to just distribution of goods and opportunities ठीक है democracies are based on political equality democracies बेटा किस चीज में based है भाई political equality में all individuals have equal weight in elected representative parallel to the process of bringing the individuals into political arena on an equal footing we find growing economic inequalities ठीक है बेटा inequalities बहुत बढ़ती जा रही है the small number of ultra rich enjoy a highly disproportionate share of wealth and income तो जो ultra rich है वो तो भाई इतनी ज्यादा wealth जो है share कर रहे हैं और जो poor है वो poor ही गिरते जा रहे हैं not only that their share in the total income of the country has been increasing those at the bottom of the society have very little to depend upon their incomes have been declining. Sometimes they find it difficult to meet their basic needs of life, such as food, clothing, house, education, and health. तो बेटा ये भी चीज वो लोग नहीं पा पाते हैं ठीक है In the actual life, democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. In class 9 economics textbook, you've already studied about poverty in the India. आपने बेटा poverty इंडिया में जो है इंडिया में कैसे आ रही है वो सब के बारे में पढ़ा था. The poor constitute a large proportion of our voters and no party will like to lose their votes ठीक है yet democratically elected governments do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to do the situation is much worse in some other countries in Bangladesh more than half of its population lives in poverty तो बेटा इसमें ज्यादा population जो है बेटा poverty में रहती है people in several poor countries are now dependent on the rich countries even for the food supply के लिए भी बेटा rich country में वो लोग जो है dependent है ना तो बेटा आप ये वर्ड्स वेल वर्ड डायग्राम देखो तो आप देखो 50% लोग जो है उनको जो है क्या कहते हैं इनको ये स्लाइस मिल रहा है इतना पतला साइज क्योंकि ज्यादातर लोग गरीबी में ही जी रहे हैं लेकिन जो 2% है उनको हर चीज मिल रहा है हर चीज डेवलपमेंट हर चीज एजुकेशन पॉवर्टी में बिल्कुल रह नहीं रहे बाकी सब लोग पॉवर्टी इन सब चीजों में रह रहे हैं अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी No democracies lead to peaceful and harmonious lives among citizens. It may be fair to a fair expectation that democracies should produce harmonious social life. We have seen in earlier chapters how democracies accommodate various social divisions. We saw in first chapter how Belgium has successfully negotiated differences among the ethnic populations. Democracies usually develop a procedure to conduct their competition. This reduces the possibilities of these tensions becoming explosive or violent. ठीक है बेटा तो ये चीज है किस तरह से हमें नेगोशिएट देखो यहाँ पे बेल्जियम ने क्या करा बेल्जियम नेगोशिएटेड डिफरेंस अमंग इथनिक पॉपुलेशन ठीक है तो डेमोक्रेसी कैसे सोशल डिविजन्स को जो है अकोमोडेट करेगी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो इस तरह से भाई प्रोसीजर इस तरह से कंडक्ट करवा दी सब चीज इलेक्शन वगैरह भी कि भाई ऐसा ना हो कि कोई भी सेक्शन जो है एलिनेटेड फील करे ठीक है तो ये सब बेटा चीजें होती हैं कैसे अकोमोडेशन होता है सोशल डाइवर्सिटी का ये हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे ठीक है तो ठीक है नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप कोई भी सोसाइटी बेटा फुल्ली या परमानेंटली कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करवा सकती but we can certainly learn to respect these differences and can also evolve mechanism to negotiate the differences लेकिन हम लोग definitely mechanisms को evolve कर सकते हैं to negotiate the differences democracy is best suited to produce this outcome democracy को best suited किया जाता है कि भाई democracy को बोला जाता है कि सबसे बढ़िया चीज है suitable है to produce the this outcome non democratic regimes often turn a blind eye to or suppress the internal social differences ठीक है
तो ब्लाइंड आई और सप्रेस द इंटरनल सोशल डिफरेंसेस को सप्रेस किया जाता है. एबिलिटी टू हैंडल द सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स और एंड कॉन्फ्लिक्ट इज जस्ट अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक regimes. But the example of Sri Lanka reminds us that democracy must fulfill two conditions to in order to achieve this outcome. ये two conditions क्या है? It is necessary to understand that democracy is not simply the rule of majority opinion. ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि डेमोक्रेसी ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रूल है मेजोरिटी ओपिनियन का ना. Majority always needs to work with the minority so that government functions to represent the general view. ठीक है, तो majority and minority opinions are not permanent. Then it is also necessary that rule by the majority does not become rule by the majority community in terms of religion, race or linguistic groups. ठीक है, तो rule majority means that in case of every decision or in the case of every election, different persons and groups may or can form a majority. तो इसलिए बेटा माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों पर ही ध्यान देना. ऐसा नहीं कि मेजोरिटी जो कह दिया वही चीज है बिल्कुल सत्य. लेकिन डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग मेजोरिटी एट द टाइम. If someone is barred from being majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or a group. ठीक है, तो अब बेटा एनिमीज देख लो. ग्रीटिंग ग्रीटिंग, तो ग्रीटिंग में भी आप देख लो बेटा टू इमेजेस ये दिखाया गया सोशल डिफरेंसेस के लिए. ठीक है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन. Democracy stands much superior to any form of government for promoting dignity and freedom of the individual. Every individual want to receive the respect from the fellow beings. हर एक इंडिविजुअल को बेटा रिस्पेक्ट चाहिए अपने फेलो बींग्स यानी कि अपने साथ जो रहने वाले लोग हैं उनसे. ठीक है, often conflict arises among the individual because some feel that they are not treated with due respect. उनको ऐसा लगता है कि भाई उनको जो है ड्यू रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं किया जाता है. The passion for respect and the freedom are the basis of democracy. जो पैशन और रिस्पेक्ट पाने के लिए और फ्रीडम, ये जो है डेमोक्रेसी का बेसिस है. डेमोक्रेसी थ्रूआउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस, at least in principle. This has been achieved in various degrees in various democracies. For societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is simple matter to recognize that all individuals are equal. Take the case of dignity of women. Most societies across the world were historically male dominated societies. Patriarchal societies थी, ज्यादातर मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज थी. लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव क्रिएटेड सम सेंसिटिविटी टुडे. The respect to and equal treatment of women are necessary ingredient of a democratic society. That does not mean that women are equally always treated with respect. But once the principle was recognized, it became easier than women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally. In non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have a legal and moral force there. ठीक है, the same is true in the caste inequalities. Democracy in India has strengthened the claims of disadvantaged and discriminated caste for equal status and equal opportunity. There are instances of still caste-based inequalities and atrocities, but these lack the moral and legal foundations. Perhaps it is the recognition that makes ordinary citizens value their democratic rights. ठीक है बेटा, तो डेमोक्रेसी ने क्या प्रोवाइड करवाया? डेमोक्रेसी ने हमें ये प्रोवाइड किया कि हम अपनी आवाज उठा सकते हैं. अब देखो वुमेन्स के पास हमेशा से राइट नहीं थे, और व्हेन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट केम इन, सो वुमेन को चांस मिला कि दे कैन वॉइस अप देयर डिमांड्स, दे कैन कीप देयर डिमांड्स इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट्स. तो उस वजह से उनके राइट्स बढ़े, उनको कई जगह जो है इक्वालिटी मिली. तो इक्वालिटी देना, डिग्निटी देना सिटीजन्स को, सेल्फ रिस्पेक्ट देना, फ्रीडम लेना, ये तो बेसिक फ्रीडम देना इज द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, अब देखो बेटा नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी also functions as a criteria for judging any democratic country. Okay. What is most distinctive about democracy is that its examination never gets over. उसका examination कभी over होता ही नहीं. As the democracy passes one test, it produces the another. एक दूसरा टेस्ट उसके लिए आ जाता है. As people get some benefits of democracy, they ask for more. वो कहते हैं कि नहीं हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, क्योंकि वो कभी फुलफिल नहीं होती उनकी विशेष. वो कहते हैं कि भैया ये मिल रहा है तो ये भी चाहिए, वो मिल रहा है तो वो भी चाहिए, मतलब हर चीज चाहिए. ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट है. Okay.
That is why when we ask people about the way democracy function, they will always come up with more expectation and many complaints. The fact that people are complaining is itself testimony to the success of democracy. That means people खुश हैं डेमोक्रेसी से और वो कंप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब डेमोक्रेसी को और ज्यादा अच्छा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये भी हो सकता है, आप ये भी दो हमें, वो भी दो, है ना। तो इट शो दैट पीपल आर बेसिकली पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी। और अगर लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका मतलब डेमोक्रेसी सक्सेसफुल गवर्नमेंट बन रही है। इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस and ability to expect and look critically at the power holders and the high and mighty. And the high and mighty. The public expression and dissatisfaction with democracy shows the success of democracy project. It transforms people from the status of subject into that of citizens. Most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the government is run and to their own self interest. तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि उनका वोट जो है डिफरेंस जरूर क्रिएट करता है, ठीक है। सो रोजा पार्क्स स्टिल इंस्पायर्स। तो अब देखो बेटा, रोजा पार्क्स ने जो है किस तरह से वो सीट पे बैठा था जो कि कहीं ना कहीं वाइट पीपल की सीट थी, पर वो वहां बैठी, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट इज, ओके नेक्स्ट आता बेटा क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच जिस वाचिंग। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अंडर 30 मिनट्स वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि टारगेट था 40 मिनट्स से जल्दी कंप्लीट करना है, बट 30 मिनट्स में कंप्लीट हो गया, सो इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच जिस वाचिंग दिस वीडियो। ओके।